દાદા ખાચરના દરબાર ઘરમાં જાય ને તો ભગવાને શું કરાવ્યું ખબર છે? એના માટે સ્પેશિયલ 2 ચોકીદારો મુકાયેલા કે જ્યારે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી જ્યારે તાન ચડે ને એટલે પછી કોઈને રોકાય નહીં, કોઈને રોકાય નહીં. એનો તોડે અને મહારાજને ભેટી પડે, અને મહારાજને ભેટી પડે એ તો બરાબર, પણ એટલા ગળગળા થઈ જાય, એટલા પ્રેમાતુર થઈ જાય કે મહારાજને ચાટવા માંડે. એના માટે 2 ચોકીદારો સ્પેશિયલ મુકાયેલા કે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી ગમે ત્યારે આવેશમાં આવે ને ભાગ આવે અને સીધા મહારાજને ચાટવા જ માંડે. એવી એકાકારી સ્થિતિ હતી. રાધાજી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ ભક્ત રાધાજી હતા. એ રાધાજી કરતા પણ શ્રેષ્ઠ હતા સચ્ચિદાનંદ સ્વામી. જ્યારે જ્યારે રાધાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વિયોગ થતો ને તો એમનો ફક્ત જે ચાંદલો હતો ને ચાંદલો એ કાળો થઈ જતો. પણ જ્યારે સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને મહારાજનો ઘડીક વિયોગ થાય ને, ઘડીક વિયોગ, તો 9 દ્વારથી એક રોમથી લોહીના ટસકાઓ ફૂટવા માંડે. એવી પરિસ્થિતિ, એવી સ્થિતિ સચ્ચિદાનંદ સ્વામીની હતી કે મહારાજના સ્વરૂપ પોતાને એક ઘડી પણ ન રહી શકે. એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને યાદ કરીએ તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતાની વાતોમાં એમ કહે છે, એક ઘડી જો મૂર્તિ ભૂલાય, એક ઘડી જો મૂર્તિ ભૂલાય તો તાળવો ફાટી જાય. એક ઘડી જો મૂર્તિ ભૂલાય તો તાળવો ફાટી જાય. એ ભગવાનના સ્વરૂપમાં એવી વૃત્તિ રાખજો. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને મહારાજનો વિયોગ થાય તો લોહીના ટસકા ફૂટે. એ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી શ્રીજી મહારાજના પરમ ભક્ત. એકવાર સચ્ચિદાનંદ સ્વામી ને ખબર પડી કે મહારાજ ગઢપુરમાં છે, અને મહારાજ ગઢપુરમાં છે સાંભળીને જ્યાં કચ્છમાં વિચરણ કરવા જાય છે ને તો વચ્ચે એક મોટા વહાણમાં બેઠા. આ સ્થિતિ એવી હતી કે ગમે ત્યારે સમાધિમાં જતા રહે. બહુ તાનમાં આવી જાય, સચ્ચિદાનંદ સ્વામી મૂર્તિના તાનમાં આવી જાય તો સમાધિ લાગી જાય, અને સમાધિ લાગે પછી ઠેકાણ નો રહે. 1 દિવસ 2 દિવસ 3 કેટલા દિવસ વહાણમાં બેસી ગયા ખરા, પણ બહુ તાનમાં આવી ગયા ને એટલે સમાધિમાં આવી ગયા. એટલે વહાણવાળા વિચાર કરે 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ કેટલાય દિવસ પસાર થઈ ગયા, પણ આ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી એમની અવસ્થામાં બેઠા હતા. એટલે સચ્ચિદાનંદ લોકોને એમ થયું કે ભાઈ આ મહાત્માએ પોતાના પ્રાણોનો ત્યાગ કર્યો છે, અને પ્રાણોનો ત્યાગ કર્યો છે એટલે હવે આ સંતની ચિતાગ્નિ કહેતા અગ્નિ સંસ્કાર કરવો પડશે. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને 3 દિવસ સમાધિમાં થઈ ગયા. આ બાજુ સર્વે લોકોએ નક્કી કર્યું કે હવે આ મહાત્માનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવો જોઈએ. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને સર્વે ઉપાડીને લઈ ગયા, સુંદર મજાના લાકડાઓ ગોઠવ્યા, એની અંદર સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને બેહાર્યા, પાછા એના પર બીજા લાકડા ગોઠવ્યા, અને આ બાજુ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ખબર પડી કે આ સચ્ચિદાનંદ વધારે તાનમાં આવી ગયા. તાનમાં આવવાના કારણે સમાધિમાં જતા હમણાં આ લોકો બાળી નાખશે. માણકીની પણ ગતિ ઓછી પડે, એના કારણે દિવ્ય સ્વરૂપે દોડતા મહારાજ આયા, અને જ્યાં પેલા ચિતાગ્નિને અગ્નિ સંસ્કાર કરવા જાય તો એ લોકો આ કોઈ મર્યા નથી, આ તો મારી મૂર્તિમાં ગુલતાન બન્યા છે, મારી મૂર્તિમાં ગુલતાન બનીને અખંડ સમાધિમાં આવી ગયા છે, તે મર્યા નથી. અને સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને ત્યાં ચિતાગ્નિથી ઉપાડ્યા. ઉતારીને સ્વામી ભગવાને ચપટી વગાડી, હે મુનિ જાગો, દેના ભાનમાં આ લોકો હમણાં તમને બાળી નાખવાના હતા. આવી તાણવાળા, આવી ધ્યાન મુદ્રાવાળા, આવા મહારાજની મૂર્તિમાં રમનારા એ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી હતા. જે સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને આજે શ્રીજી મહારાજે પરચો પૂર્યો, અને એમની રક્ષા એવી રીતે શ્રીજી મહારાજે આજે કરી છે. અને એ શ્રીજી મહારાજનું અખંડ સ્મરણ કરતા એ સર્વે સંતો મહારાજને સંભાળે છે, એ ભક્તો મહારાજને સંભાળે છે. એ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી જે આ પરચો છે આપણને શીખવાડે છે
कि भगवाननी मूर्तिમાં ગુલતાન થવાનો મોટો મોટો ફાયદો એ कि भगवान તમારું કાયમી રક્ષણ કરે છે. અમદાવાદના ડોસાતાઈ જ્યારે સર્વપ્રથમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન અમદાવાદમાં આવ્યા ને, એક સમય અમદાવાદમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન અમદાવાદમાં આવ્યા તે ખેતર નજીક આવ્યું અને ખેતરમાં એક મુસ્લિમ જાતિના લોકો ખેતી કરતા હતા. એમાં બધા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ भगवान की जय हो, स्वामीनारायण भगवान की जय हो, भगवान का नाम सुनाई दिया. और फिर अचानक वहां रहा एक मुक्त स्थिति को प्राप्त डोसाताई जाति से मुस्लिम है. उसे पता लगा कि कोई महापुरुष, कोई औलिया पुरुष, कोई अल्लाह यहाँ से गुजर रहा है, देखो तो सही कौन है स्वामीनारायण. और जहाँ दृष्टि की तो भगवान स्वामीनारायण मान की घोड़ी पे विराजमान होकर रूम झूम करती मान की घोड़ी जा रही है. और स्वामीनारायण भगवान के दर्शन डोसाताई को हुए तो डोसाताई ने पूछा वहाँ भक्तों से कि स्वामीनारायण है कौन. तब भक्तों ने कहा कि वो घोड़ी पर विराजमान होके जा रहे हैं ना, वही स्वामीनारायण. हाँ, है कौन? ये प्रकट भगवान है. अभी मृत्यु लोक में प्रकट भगवान विचरण करे, साक्षात परमात्मा है. मुझे इन्हीं के दर्शन करने हो तो होंगे. हाँ, आओ, अहमदाबाद में विराजमान रहने वाले हैं, आप आइए दर्शन करिए. और जब उनके दर्शन करने की अभिलाषा अंतर में जगी तब डोसाताई भगवान के दर्शन करने अहमदाबाद गए. डोसाताई ने दूर दृष्टि की और दूर दृष्टि करने पर देखा हजारों की जनमेदनी है, हजारों लोगों से पूरा सभा मंडप भरा हुआ है. मुझे यहाँ पर स्वामीनारायण भगवान के दर्शन कैसे होंगे. लेकिन भगवान भक्तवत्सल है. दूर दृष्टि की और भगवान के मुख से शब्द निकले, डोसा आओ, ए जगह करो, जगह यहाँ पे जगह हो रही है. डोसाताई को आवाज लगाई, डोसा आओ, ए भक्तों जरा जगह करो, जगह करवाई. और डोसाताई को हुआ कि मैं पहली बार मिलने आ रहा हूं और इन्हें पता कैसे लग गया कि मेरा नाम डोसाताई. और डोसाताई का नाम लेकर के बुलाया. डोसाताई दौड़ता जब भगवान स्वामीनारायण ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे उनके चरणों में जाकर के डोसाताई गिर गया. हे धन्य हो, हे औलिया, हे अल्लाह, धन्य हो. चरणों में गिर गया. और जब चरणों में गिर गया ना, तब भगवान की कृपा दृष्टि से
भगवान के चरण का स्पर्श होने मात्र से डोसा को समाधि हो गई। और जब डोसा को समाधि हो गई ना, तब डोसा ने क्या देखा? उच्चे 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 सिंहासन पर भगवान स्वामीनारायण मध्य में विराजमान है। उनके चारों तरफ मुक्त मंडली विराजमान है। सब ही एक समांतर दृष्टि से भगवान पुरुषोत्तम नारायण को देख रहे हैं और सभी अपने आप को धन्यता अनुभव रहे हैं कि वाह महाराज, आज आपके धाम में आपके स्वरूप का सुख लेते लेते अति आनंद आ रहा है। और डोसा ने देखा इतनी करोड़ों की संख्या में ना गिनी जा सके इतनी संख्या में मुक्त मंडली भगवान को देख रही है। आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज मैं धन्य हुआ कि ऐसे प्रकट भगवान का दर्शन मुझे हुआ। और भगवान ने हाथ जहां डोसा ताई के ऊपर रखा तो डोसा ताई समाधि में जग गया। प्रभु मुझे आपका आश्रित बनाओ, मुझे आपका आशिक बनाओ। तेरे भगवान ने कहा डोसा तू जाति से मुस्लिम है, तेरी बिरादर के लोग तुझे मेरा भजन नहीं करने देंगे। अरे मैं बिरादरों से नहीं डरता, मैं किसी समाज वाले लोगों से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो सिर्फ प्रभु आपसे, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होना। महाराज कहते हैं कि हाँ डोसा मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, बस प्रभु आपकी शरण में मुझे ले लीजिए, मुझे और किसी दुनिया का सुख चाहिए नहीं। डोसा की खुमारी देखी, डोसा को कहा संतों ने, डोसा समाज के लोग तेरे को जाति से बाहर निकाल देंगे, तुझे दुख देंगे, न करने के कार्य कैसे करवाएंगे। डोसा तुम निकल, छोड़ ना प्रभु, मुझे आशिक बनना है। संतों को बोला कंठी लाओ, जल लाओ और वर्तमान धारण करवा करके उसको आशिक बनाया। और भगवान ने आज उपदेश दिया, बेटा तेरे जीवन में अब बहुत संकट आएंगे, मरने तक के संकट आएंगे, लेकिन ऐसी विकट संकट आ जाए ना तो दिल में याद रखना क्या, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण खुमारी से बोलना, मैं तेरी सहाय करने आऊंगा। और डोसा आज घर गया, और घर गया तो रोज तो अल्लाह 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 करता था, लेकिन आज डोसा के मुख में है स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, सर्वोपरि स्वामी नारायण स्वामी नारायण। आज उसके मुख में स्वामी नारायण के शब्द सुनाई दे रहे हैं। घर के लोगों को, समाज के लोगों को डोसा के ऊपर स्वामीनारायण भगवान ने मंत्र जंत्र करके, डोसा हम जाति से मुस्लिम हैं, हमारे भगवान अल्लाह है, हमारे भगवान पैगंबर है, तू उन्हें छोड़ करके स्वामीनारायण भगवान हिंदू धर्म को अपना लेता है। देखो मुझे माफ करो, मेरे मन में मैंने खुद ने अनुभव किया है कि यही प्रकट है, यही पुरुषोत्तम नारायण है, यही सभी अवतारों के अवतारी है। इसलिए मैं इनके दर्शन करने के लिए गया था, उन्होंने मेरा नाम लेकर बुलाया और मुझे उनके धाम के दर्शन कराए, और मैं बड़ी अद्भुतता के साथ उनके दर्शन करके बड़ा गदगदित बना हूं। उनके लोगों को लगा, बिरादर के लोग, समाज के लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के सबने निर्णय लिया कि डोसा को एक काम करते हैं, दरगाह में ले जाते हैं और दरगाह में ले जा करके फकीरों के द्वारा इसके ऊपर झाड़ा लगवाएंगे। फकीरों के द्वारा, मंत्र तंत्र द्वारा झाड़े लगवाएंगे। तब डोसा ने कहा, आप क्यों परिश्रम कर रहे हो, मुझे वहां मत ले जाओ, मुझे वहां नहीं जाना। संध्या का समय था। जिस प्रकार से हमारे हिंदू मंदिरों में संध्या के समय आरती, नियम, चेष्टा की जाती है, ठीक उसी प्रकार से अल्लाह की दरगाह में भी अजान बोली जाती है। और आज अल्लाह की दरगाह में फकीरों के पास जब ले जाया जा रहा था, दूर से शब्द सुनाई दिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। डोसा ने कहा कि ना ना, मुझे वहां नहीं जाना, मैंने स्वामीनारायण भगवान को पहचान लिया है, उनसे मैं जरा भी दूर नहीं रहना चाहता, आप मुझे दूर
पास ले गए और डोसा ताई को वहां बैठाया। डोसा ताई के ऊपर कितने ही मंत्र तंत्र किए, कितने ही झाड़े झपटे किए, लेकिन डोसा ताई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब वहां के रहे फकीरों के मुख से शब्द निकले थे, अरे भाई, इसने जो प्राप्त किया है ना, उसके आगे हमारी साधना भी चलती नहीं है। कि डोसा जो कर रहा है उसे करने दो, उसके भजन में, उसकी भक्ति में विक्षेप मत करो, इससे पुरुषोत्तम नारायण की प्राप्ति हो चुकी है। उस दिन फकीरों ने ऐसा कहा। घर के लोग माने नहीं, घर में लाए, घर में ला करके घर के अंदर एक पटारी में उनको पैक बंद कर दिया। फिर डोसा को याद आया कि मेरे भगवान ने कहा था कि मुझे अंतरात्मा से याद कर लेना, और डोसा ताई के दिलगीन होकर डोसा ताई के मुख में से शब्द निकल पड़े, स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। डोसा ताई अखंड स्मरण करते हैं। तब ही श्री जी महाराज आए, बोल डोसा, मैंने कहा था ना, तेरे समाज के, तेरी बिरादर के लोग तुझे दुख देंगे। महाराज, आपके स्वरूप का कैफ है ना, उससे मुझे कोई बिरादर के भय नहीं है, इन लोगों का डर भय जरा भी नहीं है। वहां से भगवान ने दिव्य दृष्टि दे करके उन्हें बाहर निकाला, और बाहर जब निकाला तो गांव के लोग बाहर बैठे थे, डोसा को बंद किया। डोसा बाहर आया कैसे? डोसा ने कहा, मैं पहले से कहता आ रहा हूं, आप काली खोटी मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल व्यर्थ की मेहनत कर रहे हो। मेरे स्वामीनारायण भगवान मेरे साथ अखंड है, अखंड रहते हैं। अब मुझे इस प्रकार से कैद ना करो। डोसा ताई को 2 से 3 बार बंद किया गया। डोसा ताई फिर निकल गया। एक बार डोसा ताई को पकड़ के कब्रिस्तान ले गए, बड़ा खड्डा किया और कहा कि डोसा आज मान जा, नहीं तो इतना बड़ा खड्डा किया है कि तेरे को इसमें डुबो देंगे, डांट देंगे, इसमें
दफना देंगे। अभी भी बोल, आप खूब व्यर्थ की मेहनत कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, मेहनत मत करो। डोसा के कहने पर नहीं माने, डोसा को पकड़ करके दफना दिया, मिट्टी से ढक दिए। वो लोग पसीने से रेब-जेब हो गए, पसीने से लथपथ हो गए, थक चुके थे और आज सब कह रहे थे कि आज डोसा का एक आप समाप्त प्रकरण। लेकिन जहां घर पे पहुंचे ना, उससे पहले दूर से शब्द सुनाई दिए, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण।